Good morning, students. So we have winded up with the chapter Judiciary. We will be proceeding towards 8th chapter. 7th chapter Federalism जो है वो आपके कोर्स से इस साल ओमिट कर दिया गया है. तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर 8 के बारे में. हमारा चैप्टर 8 किसके बारे में बात कर रहा है? Local government. Away the question actually which arise when we talk about local government is, भाई सब कुछ तो हमने पढ़ लिया. एमएलए कैसे बनते हैं, एमएलए कैसे बनते हैं, एमपी कैसे बनते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, पर ये लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट है हमारा 3 टायर सिस्टम. हमने क्लास 10 में पढ़ा था. जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वो थी पंचायती राज सिस्टम, राइट. तो लोकल गवर्निंग बॉडी क्या है उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, किसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट? देखो, local government is a system in which the administration of local affair is entrusted to the representative of the people inhabiting the locality. They know best the local needs and local aspirations. Means wherever we are living in, let's say we are living in Behror. So a person who is local in Behror, he is able to understand the problem much better than a person who is not staying there. Let's take an example. Let us say that the MP of our area is Balaknath ji, right? It is not possible for him to get himself aware, updated about the problem of entire Alwar as a Jilla. As a Jilla, he is not able. इतना बड़ा जिला है, it is not able for him कि he must aware about each and every problem, what are happening in the particular village, what is their local problem. It's not possible for him. For this, there are MLAs. MLA can know that problem much better than MP, and our Panch and Sarpanch, those who are the resident of that particular village, they are able to understand that problem much better than these two. So, local government, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट. आपके एरिया में वो कौन है? Who can understand your प्रॉब्लम्स नेटिव लेवल पर, बिल्कुल रूट लेवल पर. हु इज द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन द सेम बोट. वो भी वही सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द कॉमन पब्लिक. सो टू सॉल्व आउट दोज प्रॉब्लम्स, टू रूट आउट दोज प्रॉब्लम्स, we need a local person. We don't need an MLA, we don't need an MP. We need somebody local resident of that place. And वो कौन है? वो है हमारे पंच एंड सरपंच, because they are particular resident of that particular country. तो वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं, that body is known as local government. ये हो गया local government. One more thing. Then what is the importance of local government? Local government की importance क्या है? देखो, local government plays a very significant role in solving local problems of the people which they get acquainted in their day-to-day life. It is much more easier for them to solve this. Now, this institution provides opportunity to the people to govern themselves. Like we see, पंचायती राज सरपंच, पंचायत होती है. पंचायत के अदर दिन एक
Gram Sabha is also there, and all the members of that particular village, they are the member of Gram Sabha. So they themselves are governing them. They are getting a chance to govern themselves on their own. So this is the importance of local government body. Now we'll move to the types of local government. कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है? देखो, इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स. कितने टाइप की होती है इंडिया में लोकल गवर्नमेंट जो है ये इट हैज डिवाइडेड अप इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन सी होती है वो? अर्बन एंड रूरल. कौन सी होती है? अर्बन एंड रूरल. रूरल we were just discussing about the rural. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या हो? रूरल में नहीं, अर्बन में क्या होते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं which are helping in running the local government properly. रूरल लेवल पर क्या क्या होती हैं? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत. रूरल में क्या क्या होती हैं? वो फर्स्ट वी से ग्राम पंचायत एंड हमारी पंचायत समिति. दीज 2 आर ऑन रूरल लेवल. अर्बन लेवल पर हम देखते हैं क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है एंड म्यूनिसिपल काउंसिल होती है. सेकेंड क्या होती है? म्यूनिसिपल काउंसिल. देखो, सो व्हाट वी सॉ हियर इज दैट व्हेन वी डिवाइड लोकल गवर्नमेंट, तो हमें पता चला अर्बन एंड रूरल वी हैव डिवाइडेड अप इनटू 2 थिंग्स. At rural stage, Gram Panchayat and Panchayat Samiti, they are responsible for running the local government. When we turn our face to urban department, so we see that municipal corporation and municipal council, they are wholly solely responsible. है ना? जैसे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सब के ऊपर एक और चीज होती है क्या? जिला परिषद. They wholly solely, these collectively, they all are responsible for running the local governments smoothly on rural grounds as well as on urban grounds. Moving proceed, और इनमें डेप्थ में जाने से पहले हम एक और क्वेश्चन को पहले उठाएंगे. वो क्या है? स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या स्टेटस है किसका? लोकल गवर्नमेंट्स का. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? So what we find that local governments did not get due attention in the constitution. The issue of local government was left over to the state government. They are not playing very significant role in the constitution of India. ये जो subject है that was being held over to the left over for the state governments. Now this issue of local government was added in the chapter of directive principles of state policy, which is non-justiciable and primarily advisory in nature. This we have already discussed, that the things which are in the sector of directive principle of state policy, these things are advisory only. ना पहले पढ़ चुके हैं ना, जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कि वो सारी चीजें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती हैं, वो सिर्फ स्टेट की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो हमको दे रहा है या नहीं दे रहा है ना. ये कंप्लीटली उनकी विल एंड विश पे करता है. किसका आइडिया था लेकिन ये क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को करा गया? महात्मा गांधी जी की वजह से.
बेसिकली ये जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज बीइंग गिवन टू इंडिया बाय महात्मा गांधी. So what was his concept of local government? Let's have a look on that. See, Mahatma Gandhi was a strong supporter of grassroots democracy. ना उनको लगता था बिल्कुल छोटे लेवल पर जो है, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक हम हायर डेमोक्रेसी को गेन नहीं कर पाएंगे. दिस वाज हिज ओपिनियन. सो व्हाट डज ही से दैट in entire struggle, democracy for which he advocated the organization that was local government in rural and as well as in urban areas. It is because of the wish of Mahatma Gandhi that the concept of local government was introduced in the chapter of Directive Principles of State Policy. But today, what we feel is that this was the best thing what Mahatma Gandhi could have done to the country, because running the government at local level makes running administration more smoothly. Things become very easier for everyone to understand. So हम देखते हैं कि अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कंसेप्ट को और लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को ना अपनाते, तो शायद इंडिया जैसे कंट्री में वेयर वी आर ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द वास्ट पॉपुलेशन एंड वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री, तो वो प्रॉब्लम्स जो आज रूट लेवल पर हम खत्म कर पा रहे हैं वो शायद हम खत्म नहीं कर पाते अगर हम क्या नहीं होते, इनके साथ हमारे साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो नहीं होते. सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर, हमें क्या पता चला इससे, दैट लोकल गवर्नमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर सिस्टम. हमें क्या पता चला कि लोकल गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज का मतलब क्या है और 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रहा है. सो वी विल टॉक अबाउट इसके बारे में 3 टायर सिस्टम. 3 टायर सिस्टम, दैट इज पंचायती राज. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. देखो, first of all, what is meant by 3-tier system? In 1956, a committee was appointed by the government under the chairmanship of Shri Balwant Rai Mehta. किसके अंदर में? 1956 में बलवंत राय मेहता के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी. What was the reason to make that committee? To suggest measures for the implementation of the community development schemes. This was the motto. Now this committee suggested that the development work cannot be fulfilled without the cooperation of local level. They make this point very clear that until unless local crowd, local people are not with us, तब तक हम किसी भी चीज को सक्सेसफुल नहीं बना सकते. किसी भी डेवलपमेंट स्कीम को हम सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे जब तक कि लोकल सपोर्ट हमको नहीं होगा. दे मेक दिस वेरी क्लियर. हेंस क्या रिजल्ट निकला उसका? These affairs should be entrusted to the elected representatives of the local people and the government officers should cooperate them. तो क्या नतीजा निकाला इन्होंने कि लोकल लेवल पर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये काम सौंपा जाए और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हमारे वो इन सारी
चीजों में क्या करें, इन सारी चीजों में मदद करें। किसकी मदद करें? लोगों की मदद करें। अब क्या होता है, फॉर दिस पर्पस द कमेटी रिकमेंड, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, इन्होंने रिकमेंड किया था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 टायर सिस्टम ना। तो इनका ये प्रपोजल था, इस 3 टायर सिस्टम मस्ट बी एन ऑटोनॉमस बॉडी which will describe the power and the local representatives utility of development programs and these people local level पर जो इलेक्ट होके आएंगे they must implement them। तो एक्चुअली ये जो 3 टायर सिस्टम आज हम देखने को मिलते हैं वो बलवंत राय मेहता कमेटी की देन है हमको। दे हैव मेड दिस थिंग वेरी क्लियर, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था इसको। अब हम क्या देखते हैं, क्या बताया उन्होंने, इन्होंने बलवंत राय जी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 मेन टायर्स इसमें डिस्क्राइब किए, 3 मेन पार्ट्स में इनको डाला। सबसे पहले क्या कि देख द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि पंचायत होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए? विलेज लेवल पर। हमको पंचायत बनाना बहुत जरूरी है। ब्लॉक कमेटी, सेकेंड इन्होंने क्या बनाया, ब्लॉक कमेटी और समिति ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक कमेटी और ब्लॉक समिति ये किस पे होनी चाहिए? ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए। और थर्ड ये चीज क्या बताते हैं, जिला परिषद। थर्ड क्या होना चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। किस लेवल पर होनी चाहिए? जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जिला परिषद का गठन होना चाहिए। दिस विल बी, इफ these all things will be organized, then it will be very easier for all of us to implement 3 tier system in India। ठीक है, तो भी क्लियर हो गया ना कि क्या क्लियर हुआ, व्हाट इज पंचायती राज एंड व्हाट इज 3 टायर सिस्टम। ये 3 विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक कमेटी और समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ये हमारा 3 टायर सिस्टम है। चलो अब हम एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं, इससे फंक्शंस क्या है। सबसे पहले लेते हैं ग्राम सभा के फंक्शंस लेते हैं कि ग्राम सभा के मेन फंक्शंस क्या होंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राम सभा इलेक्ट्स द प्रधान एंड द पंच ऑफ द पंचायत। क्या करेगी ग्राम सभा? क्या करेगी? प्रधान इलेक्ट करेगी और क्या करेगी? पंचायत जो पंच हैं उनको इलेक्ट करेगी पंचायत लेवल पर। ठीक है, सेकेंड क्या करेगी? द ग्राम सभा कैन रिमूव द प्रधान एंड पंच of the panchayat by passing a resolution by 2/3 majority. If pradhan and panch, if they are not doing their work properly, तो उनको कौन देख रहा है उनके ऊपर? ग्राम सभा is watching them, और ग्राम सभा के मेंबर सारे गांव के लोग हैं, and by 2/3 majority they have the right to remove pradhan and panch if they are not doing their work properly. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? ये है द ग्राम सभा डिसाइड्स द ब्रॉडर पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। वो सारी चीजें विच दे फाउंड आर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, वो उन सारी चीजों को जो है वो करेंगे। द ग्राम सभा अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द विलेज एंड इट deliberates on taxes proposed by Gram Panchayat and the votes for the imposition of taxes. देखो, to do any work we need money. वो money कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट जो काम, जितने welfare associations and all, they work, welfare schemes, they do work. The money comes only from the tax which we pay. See, government doesn't have a
प्रेस ना नोट छापने की मशीन नहीं, दर 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 छापे हम भैया बांट दो, इट कैन नॉट बी डन। सो वो टैक्सेस जो है वो रूट लेवल पर कैसे लगेंगे, कौन इकट्ठा करेगा, बजट कैसे बनेगा, हाउ मच अमाउंट विल बी दे गेटेड बाय इम्पोजिंग दीज टैक्सेस एंड हाउ दे विल बी स्पेंडिंग दिस, ये सारी चीज कौन, जो ग्राम सभा है वो इन सारी चीजों को डिसाइड करती है। आगे अगर हम चले तो हम देखते हैं दैट ग्राम सभा जो है दे पासेस द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। कितना पैसा मिलेगा, कहां से आएगा, किसको कितना मिलेगा, दीज ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा के बाद हम कहाँ आते हैं, ग्राम सभा के बाद लेट्स से हम लोग ग्राम पंचायत पे आते हैं ना। ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, जो कि हमारे 3 टायर सिस्टम का क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके मेन फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। देखो देयर आर मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ग्राम पंचायत करती है, बट उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है, हम 6 इम्पोर्टेंट फंक्शंस को वी विल बी डिस्कसिंग हियर। नंबर 1, द ग्राम पंचायत मेक्स अरेंजमेंट फॉर प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड अंडरटेक्स disinfection drives of the wells, tanks, etc. It is the whole soul and as well as moral responsibility of Panch and Sarpanch that they must provide clean drinking water to the people of the village. ये पूरी उनकी responsibility है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका क्या है, इट मेक्स sanitary arrangements in the village. This is the whole sole responsibility of the village panchayat. Thirdly, if we talk, it makes effort for improving the health of the people and for this purpose it opens hospitals, dispensaries and other things. So to take care about the health of the people who are living in village, कौन करेगा ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। गांव का हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले, इसके लिए क्या होना चाहिए, पंचायत लेवल पर गांव में स्कूल होने चाहिए। कौन इसके लिए लड़ेगा, who will be? So this is what we see, that how to provide good education, quality education, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो स्कूल खोलें, सारे काम करें जिससे कि ईच एंड एवरी चाइल्ड who is living in the village must get primary education. So ये होल सोलली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूविंग फर्दर व्हाट वी सी दैट इट वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर गुड सीड्स एंड acquainted the villagers with improved and scientific methods of agriculture. Our villages in India today also we are dependent on farming, है ना, हम farming पे ही डिपेंड करते हैं। तो how new improved fertilizers, high yield seeds, what kind of crop they must sow in the particular season to get good yield, इसके अवेयरनेस जो है वो कौन फैलाएगा, कौन पहुंचाएगा, वो पंचायत जो है, हमारी जो पंचायत है वो प्रोवाइड करवाएगी लोगों को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज हाउ वी सी दैट ये मेन चीजें हैं जो कि हमारी ग्राम सभा करती है। अब पंचायत समिति की हम बात करते हैं, पंचायत समिति के कंपोजिशन की बात करते हैं। पहले देखो, इन पंचायती राज सिस्टम द पंचायत और ब्लॉक पंचायत
ये पंचायत समिति कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? पंचायत है ना, जो इमीडिएटली पंचायत होती है, और ब्लॉक पंचायत, दिस इज कॉल्ड पंचायत समिति। पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ फ्यू मेंबर्स। हाउ कैसे डिफाइन होती है, कैसे इसका बनता है? देखो, ऑल द पंच, सरपंच ऑफ पंचायत इन अ ब्लॉक elect some members among themselves only. In some states, sarpanch or panchayat are ex-office members of the panchayat committees. Second, आप देखो, all the MLAs and MPs of the district, they are ex-office members of panchayat committee. क्यों कहा जाता है ऐसा? ताकि से पूरी नॉलेज हो इनको। थर्डली हम देखें कि 30% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। क्यों? क्योंकि विमेन्स ही विमेन्स की प्रॉब्लम्स को आगे रखेंगी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए 30% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। सीट्स हैव बीन ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्यों रखा गया है? टू गिव equal representation to everyone in everything. See, they are also the member of that particular village, right? And initially in the beginning stage, when we got independent, they were considered as a deprived people, जिनको कि शायद जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला. So to give them a chance to tell us that what are the problems they are facing and what things they want to overcome that problem. These all things इन चीजों को fulfill करने के लिए SCs, STs and women candidate इनका reservation अलग से बनाया गया. Nextly we see that the sub-divisional magistrate and the block development officer, they are the ex-office member of पंचायत समिति. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से तो लिंक होना चाहिए, क्योंकि अपना बजट ये खुद बना रहे. तो अब अगर यहाँ कहीं भी इनका इन ऑफिसर्स का लेना देना नहीं होगा, तो दे कुड डिमांड समथिंग एक्स्ट्रा. तो सारी चीजों को जस्टिफिकेबल तरीके से करा जाए, इसीलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी हो जाता है. ठीक है, दिस इज हाउ वी सी कि हमारा जो पंचायत समिति है उसका कंपोजिशन जो है वो इस तरह का होता है. नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज the power and functions of पंचायत समिति. बिकॉज अगर पावर हम देंगे ही नहीं तो काम कहाँ से होगा, है ना. अगर आपको किसी को खाली पोस्ट दे दी और पावर नहीं दी तो क्या होगा? वो अपना काम कर ही नहीं सकता सही तरीके से. तो इन पंचों को, सरपंचों को हमने पोजीशन तो दे दी, लेकिन क्या पावर है जिनके साथ ये काम कर सकते हैं? देखो, The पंचायत समिति looks after the working of पंचायत in its area. उनके खुद के एरिया में जो आते हैं. Secondly, it tries to promote agriculture in its area and describe or distributes among the farmers good seeds, fertilizers, scientific instruments. It highlights the importance of scientific methods in agriculture. It advances loan to the farmers for increasing agricultural production. क्योंकि बहुत बार जो सीड्स हैं महंगे होते हैं, किसान के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? रुकेगा थोड़ी. वो क्या करेगा? वो उनको लोन मिल जाता है. टाइम पर हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स भी चलाती है टू बेनिफिट द पीजेंट्स. वो लोन खत्म कर देते हैं उनका, है ना, वेव ऑफ कर देते हैं लोन एंड ऑल. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑन देयर लेवल ऑल्सो ट्राइज टू हेल्प देम. एंड नेक्स्ट वी सी दे ट्राइज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन इट्स एरिया. इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ दे विल वर्क, इसका पूरा डिसीजन जो है वो कौन लेता है? हमारी पंचायत समिति लेती है. नेक्स्टली वी सी
that the steps, it takes steps for the promotion of elementary husbandry, because after white revolution ये बहुत important हो गया कि एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज वो रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट जो है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसको मीट कर देती है. देन इट टेक्स सैनिटरी अरेंजमेंट इन द एरिया. ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं ये हमारी पंचायत समिति के होते हैं. तो हम देखते हैं कि बहुत सारा जो काम है और सारे जो स्टेप्स हैं दे आर बीइंग टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट. अब हमने बना तो दिया लोकल गवर्नमेंट, बट हाउ डू लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी? कैसे ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है? देखो, as we all know, local government is government at the village and district level. अभी तक ये हमें क्लियर हो गया ना कि बिल्कुल लोकल लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे होता है. लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट्स क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, वो लोग जो सबसे ज्यादा पास हैं. A local government involves itself with the day-to-day life and problems of ordinary citizens. रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो कौन, किसके थ्रू पता चलती है उनको? लोकल गवर्नमेंट के थ्रू पता चलती है. एंड मोर ओवर व्हाट वी सी दैट डेमोक्रेसी इज अबाउट कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन. कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का है उतनी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है. सो अब रूट लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट लिंकेज है उनका, तो इससे प्रूव होता है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो ग्रो कर रही है. इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी. सो दीज पीपल हम देखते हैं विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पर्टिकुलर पीपल. इनकी अकाउंटेबिलिटी है उनके लिए, तो इससे हमें पता चलता है दैट आवर डेमोक्रेसी इज वर्किंग इन अ वेरी फाइन मैनर, है ना. ये हमें पता चल जाता है. आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं दैट स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट एंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी. और यही दो जो चीज हैं वो हमें हमारे 3 टायर सिस्टम में मिलती है, और यही चीजें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सही रूप से आगे चल रही है. और ये मोटो हमारा सॉल्व हो रहा है पंचायती राज की थ्रू. It is the level of local government that the common people can be involved in decision making, in concerning their lives, their needs, and above all, their own development. People are working for their own development. खुद ही आइडियाज दे रहे हैं, खुद ही उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद ही उनके सामने हैं. So thus we say that local governments always strengthen democracy. एक चीज और, every coin has two sides, positive as well as negative. तो अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, we are talking about only positive aspects. सब अच्छा अच्छा हमको दिख रहा है कि भाई पंचायती राज जो सिस्टम हमने बना दिया, that is an excellent system, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है. वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस भी तो होती हैं. अब वीकनेसेस क्या हैं पंचायती राज सिस्टम की? देखो, पंचायती राज system has brought democracy at a grassroots level. In spite of having many important advantages of the system, we have do some weaknesses too. कुछ weaknesses भी हैं जो रह गई हैं. क्या क्या है वो? Number 1, most of the villagers are illiterate. है ना, बहुत सारे जो विलेजर्स हैं मैक्सिमम हम कहें वो इलिटरेट है. सेम इन द केस विद द मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत. सो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इलिटरेट है. हालांकि ये जो लेवल है ये बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि इलिटरेसी तो है. आगे जब हम चले तो villagers do not have real environment for democracy.
The village people still have the differences in their mind which are based on caste system, jealousy and many more. बेसिक जो चीज थी ये लाने की, इसीलिए हम देखते हैं SC, ST, OBC, विमेन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन आज भी हम पाते हैं कि बहुत सारी जगह पे लोग इनसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो ये एक और ड्रॉबैक प्रूव होता है हमारे लिए। In most of the villages, the political parties interfere in the working of village panchayat. Although there is no place for the political parties in local self-government. बेस एक्चुअली यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो अपने वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जरिया बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का कि भाई पंचायत लोकल रूट लेवल से शुरू होकर बड़े 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 नेता बनते चले जाते हैं। हालांकि हमारा बेसिक फैक्टर यही था जब हमने बनाया इसको कि हम जो है इसको पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखेंगे, लेकिन वो हम नहीं रख पाए। वी फेल टू डू सो। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा है ना। अब तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये तो थे बुराई जो कि पंचायती राज सिस्टम की थी। When we talk about the achievements of पंचायती राज system, yes, we do have. वो कौन से हैं? The achievements of पंचायती राज system are number 1, the system has succeeded in improving the condition of villages by taking up many schemes, है ना, many welfare schemes. Secondly, the system has brought politicians awakening in the village. They not only have their own representative but also take part in making decisions in the village. बड़े लेवल पर जब हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें रूट लेवल पर भी समझना पड़ेगा, है ना। Now पंचायती राज institutions work as training ground and the attention of the government officials to their problems. रूट लेवल पर अपनी प्रॉब्लम को समझाने में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सक्सेसफुल रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं that this system has helped in bringing a revolution in many part of the country, especially in Punjab and Haryana. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको पंचायती राज सिस्टम की वजह से देखने को मिलती है। With the course of time, many amendments have been done. बहुत सारे अमेंडमेंट जो हैं वो किए गए। हम 4 मेजर अमेंडमेंट्स करे गए पंचायती राज सिस्टम में अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम करेंगे। देखो, द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट मेड द इलेक्शन टू पंचायती मशीनरी इन ड्यू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस, कि हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। इट मेक्स प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स at all the 3 levels in favor of women, the scheduled caste and the scheduled tribes and the other backward classes. Now the panchayat has been given the power and responsibility of local planning and mobilization of their own resource. ये सारी चीजें जो हैं करी गई। Now there are certain areas also where 73rd constitution amendment apply नहीं होता है। वो क्या क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243, नथिंग प्रोवाइडेड इन दिस अमेंडमेंट शेल अप्लाई टू द शेड्यूल एरियाज रेफर टू द क्लॉज इन क्लॉज 1 और द ट्राइबल एरियाज जो कि क्लॉज 2 में रेफर किया गया आर्टिकल 244 के। मतलब आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वहां पर यह अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं होगा। ऑल्सो no provision of 73rd amendment shall affect the function and powers of गोखरा हिल काउंसिल। दार्जिलिंग गोखरा हिल काउंसिल का रूल आया था, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं करवाया जाएगा।
तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि करेंगे. हाउएवर it is provided that not withstanding anything in this constitution, Parliament by law can extend the provision of 73rd Amendment to the scheduled areas where we can say or where they are referred, the clause 1 and 2 in 244. अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो इन दोनों एरियाज को चेंज करके वहां तक ले जाएगी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम.